ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے بے شک اللہ نے ایمان والوں کی جان اور ان کے مال خرید لیے ہیں. ایمان والوں کی جان اور ان کے مال اللہ نے خرید لیے. بزنس کرنے والے لوگ، خرید و فروخت کرنے والے لوگ خرید و فروخت کا اصول جانتے ہیں. جب کسی چیز کو خریدا جاتا ہے تو اس کی قیمت ادا کی جاتی ہے. بغیر قیمت ادا کیے تو کوئی چیز نہیں خریدی جاتی. کوئی مکان آپ خریدیں قیمت ادا کرنی ہے، کوئی پلاٹ آپ خریدیں قیمت ادا کرنی ہے، آپ کوئی دکان خریدیں قیمت ادا کرنی ہے، دکان سے آپ کوئی سامان خریدیں. یہ تمہیدی کلمات سنیں آپ، پھر انشاءاللہ پہنچیں گے گفتگو تک. کوئی بھی سامان آپ کسی بھی جگہ سے خریدیں تو آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے. لیکن یہاں قرآن میں اللہ نے اعلان فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں کی جان اور ان کے مال خرید لیے. تو یہ جان بھی ہماری نہیں اور جو مال ہمارے پاس ہیں وہ بھی ہمارے نہیں، یہ تو اللہ نے خرید لیے. تو خرید و فروخت کا اصول ہوتا ہے کہ قیمت ادا کی جاتی ہے. اے اللہ تو نے ایمان والوں کی جان ان کے مال خریدے تو تو نے قیمت کیا ادا کی؟ کس چیز کے بدلے میں خریدے؟ قیمت کیا ہے؟ ایمان والوں کی جان کی قیمت کیا ہے؟ ایمان والوں کے مال کی قیمت کیا ہے؟ تو میرے عزیزو، ایمان والوں کی سستی قیمت نہیں ہے، یہ سودا سستا سودا نہیں ہے. ایمان والوں کی جان اور ان کی مال کی قیمت اندازہ کیجئے آپ. اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ نے خرید لیا. کس چیز کے بدلے خریدا؟ فرمایا گیا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ نے جنت کے بدلے میں خریدا ہے. بہت بڑی قیمت اللہ نے رکھی ہے، اللہ نے جنت کے بدلے میں خریدا ہے. تو خرید لیا اللہ نے. جان ہماری نہیں، مال ہمارے نہیں. جس چیز کو آپ خرید کر لائیں اس پر آپ کا مالکانہ حق ہوتا ہے. یہاں تک کہ آپ بازار سے ایک رومال خرید کر لائیں دستی ہاتھ میں، آپ اس کو خرید کر لائیں، آپ کا مالکانہ حق ہے. آپ چاہیں تو اس سے چہرہ صاف کریں، آپ چاہیں اس سے ہاتھ صاف کریں، آپ کی مرضی ہے. آپ چاہیں اس سے اپنے پیر صاف کریں یا آپ چاہیں تو آپ اس سے اپنے جوتے صاف کریں. کوئی آپ کو روک نہیں سکتا ہے کیونکہ آپ اس پر مالکانہ حق رکھتے ہیں. تو وہ اپنی مرضی کے حساب سے کوئی کام نہیں کر سکتا. آپ نے رومال اگر خریدا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں کرے گا کام کہ صرف آپ کے چہرے کو صاف کرے گا. آپ پیر کی طرف لے کے جائیں تو پیر کو صاف نہیں کرے گا. مالکانہ حق آپ کا ہے، آپ جو چاہیں گے اسے وہی کرنا ہے. تو ایمان والوں کی جان اللہ کی، مال اللہ کے، تو مالکانہ حق تو اللہ کا ہے. تو پھر ایمان والے کو تو وہی کرنا ہوگا جو رب چاہے گا. اور رب کیا چاہتا ہے؟ رب چاہتا ہے التائبون العابدون الحامدون. رب چاہتا ہے میرا بندہ توبہ کرے، رب چاہتا ہے میرا بندہ عبادت کرے، رب چاہتا ہے میرا بندہ میری حمد کرے، رب چاہتا ہے میرا بندہ میری پاکی بیان کرے، رب چاہتا ہے بندہ میری بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، رکوع کرے، قیام کرے، سجدہ کرے، میری بارگاہ میں جھک جائے، عبادت گزار بن جائے، جو میں نے حدیں قائم کی ہیں ان حدوں کا محافظ بن جائے. پھر بندہ جب یہ کوالٹی اور یہ صفات پیدا کر لیتا ہے تو پھر اللہ اسے خوشخبری دیتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. اے میرے بندے، خریدا میں نے تھا اور میں نے قیمت جنت رکھی تھی، اب میری مرضی کے مطابق سب کچھ کیا ہے تو اب تیرے لیے میں انعام یہ رکھتا ہوں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. اب میں تجھے خوشخبری سناتا ہوں، خوش ہو جا کہ تیرا ٹھکانہ جنت ہے. خوش ہو جا کہ تیرا ٹھکانہ جنت ہے. تو جنت ان کا ٹھکانہ ہے جو سجدے کیا کرتے ہیں، جنت ان کا ٹھکانہ ہے جو توبہ کیا کرتے ہیں. اور ہمارے بزرگوں کی یہی شان رہی، وہ خود بھی توبہ کرتے تھے، دوسروں کو بھی توبہ کی راستے پہ ڈالتے تھے. خود بھی توبہ کرتے تھے، دوسروں کو بھی توبہ کا راستہ دکھاتے تھے. خود بھی عبادت کرتے تھے، دوسروں کو بھی عابد بناتے تھے. آج کل ہمارے یہاں سسٹم یہ ہے کہ بندہ خود بھی عبادت سے دور ہے، دوسرے کو بھی روکتا ہے. خود بھی توبہ سے دور ہے، دوسرے کو بھی روکتا ہے. اور یہ صرف عام مسلمانوں کی بات نہیں جناب،
ये मैं आम मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, जो बड़ी बड़ी दस्तारें सर पे सजाए फिरते हैं उनका भी हाल यही है, ना खुद तौबा करते हैं ना अपने करीबियों को तौबा के रास्ते पे जाने का हुक्म देते हैं। तो इबादत करने वाले, सजदे करने वाले, अच्छा पहले हम जरा सा यहां पे एक लम्हे के लिए ठहर कर सजदे की फजीलत को समझे और सजदे की अजमत को समझे। सजदा क्या है? सजदा, जिस तरह मैंने अपनी पहली गुफ्तगू में जुमे की, रमजान के पहले जुमे को सजदे के हवाले से बात की थी। सजदा नमाज अहम तरीन इबादत है और अफजलुल इबादत का इसे खिताब मिला हुआ है। सारी इबादतों से अफजल इबादत नमाज है और नमाज के अंदर 4 अरकान होते हैं। पहला रुकन होता है कयाम, दूसरा होता है रुकू, तीसरा होता है सजदा और चौथा होता है कायदा। ये 4 अरकान है नमाज के। इन चारों अरकान में जो टॉप क्लास की पोजीशन है वो सजदा है। सबसे अहम पोजीशन नमाज की सजदा है। अब इसको आप जिस तरह से भी देखें, इसको आप अगर साइंस के एतबार से देखेंगे, साइंटिफिक तरीके से देखेंगे, तब भी आपको समझ में आएगा। बॉडी के अंदर जो ब्लड है हमारी, उसका जो सर्कुलेशन है, ये दिल हमारा ब्लड सर्कुलेशन के हिसाब से धड़कता है। ये ब्लड प्रेशर जो लो और हाई होता है ना, इसी से दिल की धड़कनें कम ज्यादा होती हैं। दिल की धड़कनें जब रुकने लगती हैं मतलब ब्लड प्रेशर डाउन होने लगा। दिल की धड़कनें तेज हो जाएं, दिल घबराने लगा, बेचैनियां बढ़ने लगी, मतलब ब्लड प्रेशर हाई हो गया। तो दिल जो है ना, दिल इंसान की बॉडी में, दिल एक ऐसी चीज है जो सबसे अहम है। इंसान के हाथों से पैरों तक तमाम वजूद में बारीक बारीक रगें अल्लाह ने रखी हैं, उनमें खून दौड़ता है, खून गर्दिश करता है, उसी को ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। जब तक नसों के अंदर खून अपनी मुकर्ररा तादाद और एक हद पर एतदाल के साथ में दौड़ रहा है, तब तक इंसान का वजूद बिल्कुल दुरुस्त है। जहां ब्लड सर्कुलेशन में कोई तब्दीली आई, चेंजिंग आई, वहीं बॉडी में कोई ना कोई दिक्कत आने लगती है। तो पूरा वजूद ब्लड सर्कुलेशन से चलता है और ये सर्कुलेशन ब्लड का दिमाग तक भी होता है। दिमाग का और दिल का बड़ा करीबी रिश्ता है। लेकिन इंसान जब खड़ा होता है, बैठा होता है, तो सर उसका सबसे ऊपर होता है। सर सबसे ऊपर। तो कोई भी चीज हो, प्रेशर ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो निचले हिस्से जो हैं बदन के, वहां ब्लड सर्कुलेशन अपनी बराबर मिकदार पर दौड़ता रहता है, खून की गर्दिश बराबर रहती है। लेकिन ऊपर को जब चलता है ना खून, तो गर्दिश जो है ना उसकी थोड़ी कम हो जाती है, रफ्तार धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से दिमाग की बारीक शरियानों में खून नहीं पहुंचता और वहां पर ब्लड की गर्दिश नहीं होती। उसकी वजह से इंसान को दिमागी कई बीमारियां हो जाती हैं। कई बार ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, कई लोगों को और अलग अलग किस्म की बीमारियां, किसी के सर में दर्द रहने लगता है, किसी को और किसी किस्म की बीमारी। लेकिन जब साइंसदानों ने गौर किया तो उन्होंने इस बात को वाज़ेह किया कि मुसलमानों की इबादत में जो सजदा है, जो नमाज का रुकन सजदा है, मतलब सजदे की कैफियत यह है कि सर नीचे हो जाता है और वजूद पूरा ऊपर हो जाता है। तो जो ब्लड सर तक नहीं पहुंचता था, अब सजदे में पहुंचकर खून अच्छी तरह दिमाग की नसों में दौड़ता है, दिमाग की रगों में बारीक शरियानों में गर्दिश करता है। और जब दिमाग में खून अच्छी तरह से दौड़ता है तो इंसान का दिमाग तरोताज़ा रहता है, उसको दिमाग की कोई बीमारी नहीं होती है, उसके दिमाग में जो है उसका दिमाग तरोताज़ा रहता है और वो तमाम बीमारियों से महफूज हो जाता है। उसकी जो सोचने की सलाहियत है वो बढ़ जाती है, उसके दिमाग का जो मामलात हैं वो मजबूत और कवी हो जाते हैं। तो सजदा अगर आप साइंस के एतबार से देखें
तब भी इंसान की बका और उसकी सलामती के लिए एक अहम तरीन रुकन है, एक अहम तरीन शय है कि सजदा बंदा अगर लंबा करता है तो वो दिमाग और दिमाग की तमाम बीमारियों से महफूज रहता है। ये तो एक साइंटिफिक बात हो गई। अब सुने, सजदा सबसे अजीम कैफियत है नमाज की। इसको अब आप कुरान से समझो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया मिट्टी से, मुजस्समा तैयार हुआ हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। परवरदिगार ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों आदम को सजदा करो। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। अल्लाह ने सजदा ही क्यों करवाया? परवरदिगार ने फरिश्तों से हजरत आदम को सजदा ही क्यों करवाया? जबकि सजदा तो सिर्फ अल्लाह के लिए, इबादत तो सिर्फ अल्लाह के लिए, और इबादतों में सबसे अहम इबादत नमाज। नमाज में तमाम अरकान में सबसे अहम रुकन सजदा। फिर अल्लाह ने हजरत आदम को फरिश्तों से सजदा करवाया। सजदा ही किस लिए? फरिश्ते हाथ बांध के खड़े हो जाते बादब, फरिश्ते झुककर सलामी पेश कर सकते थे, और भी कोई तरीका हो सकता था। अल्लाह ने सजदा ही क्यों कराया? तो ये सजदा जो था इबादत का सजदा नहीं था, ये ताजीम का सजदा था। इसे सजदा ताजीमी कहते हैं। ये इबादत का सजदा नहीं था, ये सजदा ताजीमी था। तो जब फरिश्तों ने सजदा ताजीमी किया तो वाज़ेह हो गई बात कि जो टॉप क्लास की ताजीम है वो सजदा है। तो ये टॉप क्लास की ताजीम अल्लाह ने हजरत आदम को उस वक्त में ये प्रोटोकॉल दिया, आदम पैदा मैंने किया है, नाइब मैंने बनाया है, खलीफा मैंने बनाया है, इज्जतें मैं दे रहा हूं, नबूवत मैं अता कर रहा हूं, रिसालत मैं अता कर रहा हूं, अशरफ मैंने बनाया है, फरिश्तों पे बरतरी मैंने दी है, तमाम मखलूकात में अफजल तरीन मकाम तुम्हें मैंने अता किया है। तो फिर जब अल्लाह तुम्हारा रब जो खालिक व मालिक कादिर है, सुपर पावर है, वो सबसे बुलंद तुम्हें बनाए, तमाम मखलूकात पर अजमत और बरतरी दे, और फिर वो कुरान में ऐलान कर दे लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। तो जब रब ऐलान कर दे रब ने सबसे अफजल बना दिया, तो फिर रब ने फिर ताजीम का भी मयार बहुत ऊंचा रखा। ताजीम भी कोई और नहीं कराई, जो टॉप क्लास की ताजीम थी वही ताजीमी सजदा अल्लाह ने फरिश्तों से करवाया। ये सजदे की अहमियत है। ये तो ताजीमी सजदा हो गया। अब आओ करते हैं सजदा जो इबादत का है, उस सजदे की बात। अब सजदे की अहमियत समझें आप, और सजदे की अहमियत को समझना है तो बारगाह मुस्तफ़ा में चलना पड़ेगा। बगैर रसूल के, याद रखना, बगैर नबी की बारगाह में जाए न दीन मुकम्मल हो सकता है न ईमान मुकम्मल हो सकता है। कोई मुस्तफ़ा की बारगाह में न जाए फिर नमाज पढ़ के तो दिखा दे। हुक्म अल्लाह ने दिया है, तरीका मुस्तफ़ा ने अता किया है। कोई नबी की बारगाह में न जाए तो सिर्फ वुजू करके दिखा दे। हुक्म तो अल्लाह ने दिया है, तरीका मेरे रसूल ने बताया है। हुजूर की बारगाह में जब तक नहीं जाओगे कुछ भी पता नहीं लग सकता है, इबादत भी नहीं कर सकता बंदा। मेरे हुजूर ने अपनी जिंदगी में बंदों को चलने फिरने, उठने बैठने, खाने पीने से लेकर सोने जागने तक के आदाब और करीने बंदगी, सलीके बंदगी मेरे हुजूर ने अपनी उम्मत को सिखा दी।